السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دینی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت و عافیت سے رکھا ہوگا، میری دلی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور جہاں بھی اللہ کی محفل ہو وہاں جانے کی توفیق عطا کرے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہوں، یہودی ہو یا عیسائی، اپنے نبی پر ایمان لائے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لائے۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے حقوق بھی ادا کرے۔ تیسرا وہ شخص جس کی کوئی باندی ہو اور اس نے اس کی خوب اچھی تربیت کی ہو اور اسے خوب اچھی تعلیم دی ہو، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی ہو تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ فائدہ: حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے نامہ اعمال میں ہر عمل کا ثواب دوسرے کے عمل کے مقابلے میں دوہرا لکھا جائے گا۔ مثلاً اگر کوئی دوسرا شخص نماز پڑھے تو اسے 10 گنا ثواب ملے گا، اور یہی عمل ان تینوں میں سے کوئی کرے تو اسے 20 گنا ثواب ملے گا۔ میری دینی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے سمجھنے سے عمل کی توفیق عطا کرے۔ یہ تین شخص کے بارے میں لکھا، جو بھی عمل کرے ان کو دوہرا ثواب ملے گا۔ 3 آدمی کے بارے میں: پہلا، جو وہ اہل کتاب میں سے ہو، یہودی ہو یا عیسائی، اپنے نبی پر ایمان لائے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ دوسرا، وہ جو غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے، اپنے آقاؤں کے حقوق بھی ادا کرے۔ یہ بات سمجھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ہدایت دے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اپنے حبیب کے امتی ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہمارے بچے، ہمارے شوہر، ہمارے باپ، ہمارے بھائی جو بھی باہر گئے ہیں، ہم ان کو تاکید کریں کہ جو بھی کام کرتے ہو ساتھی نماز پڑھیں، ان کو دوہرا ثواب ملے گا۔ تیسرا، وہ شخص جس کی کوئی باندی ہو اور اس نے اس کی خوب اچھی تربیت کی ہو، اسے خوب اچھی تعلیم دی ہو، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی ہو۔ یہ بات بہت بڑی بات ہے۔ آج اگر ہمارے گھر میں کوئی بچیاں کام کرنے آتی ہیں تو ہم ان کے بارے میں، رشتہ کے بارے میں خواب میں بھی سوچتے نہیں ہیں۔ ان کو اس طریقے سے ہمارے گھر میں کام کرتی ہیں اور ہمارے گھر کی لائق نہیں ہیں۔ ہمارا گھر کچھ بھی نہیں، ہمارے گھر میں جیسا ہم ماحول بناتے ہیں ویسے ہی وہ ماحول کے حساب سے ہم تکبر میں آ جاتے ہیں۔ دینی ماحول بنائیں تو سمجھوتا آ جاتا ہے، دنیا کا ماحول بنائیں تو تکبر آ جاتا ہے۔ ہم دوسرے کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں، حقارت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے۔ دیکھیں میری مائیں بہنیں، ہمارے اندر میں یہ زیادہ چیز ہے کہ ہم دوسرے کو چھوٹا سمجھنا ہے، حقارت سمجھنا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی کام بچی کرتی ہیں یا عورتیں کرتی ہیں، ہم ان کو تھوڑا سے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے کہ ہم ان سے محبت سے پیش آئیں اور ان کو اپنی فیملی کے جیسا سمجھیں۔ ان کے گھر میں بھی پریشانی ہوتی ہے، ان سے بات چیت میں ان کے دل کی بات لیں کہ ان کی کتنے بڑے پریشانی میں ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں۔ ان کے گھر میں بیماری بھی ہے، پریشانی بھی ہے، حالت بھی ہے، بھوک بھی ہے، پھر بھی ہمارے گھر آ کر کام کرتے ہیں۔ ہم ان کو کچھ دیں، کچھ اللہ کی رضا کے لیے دیں، کچھ صدقہ دیں، کچھ زکوٰۃ کر کے دیں، ہم ان پر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے کہ ہم ان پر خرچ کریں، ان کو حقارت نہ کریں۔ ان کی بچیاں بھی ہیں، ان کی رشتہ دار بھی ہیں، ان کو نیچا نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا کرے۔ ہم سب کو قبر میں جانا ہے، قبر میں جانے والا کوئی کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، سب کے لیے کفن سامان ہے، سب کے لیے جنازہ ایک ہے، سب کے لیے قبر کے نیچے سب کا مٹی ایک ہی ہے۔ کوئی قبر کو سجار کے نہیں چلا جاتا، قبر کے لیے سب کا قانون سامان ہے۔ یہ سوچ کر زندگی گزارنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت اوسط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا، 1 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کھڑے ہونے کی اسی جگہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رو پڑے، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت مانگا کرو، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر
किसी को कोई नेमत नहीं दी गई। अल्लाह ताला हम सबको समझ कर अमल की तौफीक अता करे। ये जो हमारे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े थे, उनका शायद तबीयत ख़राब था, इस वजह से हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खड़े होकर खुतबा दे दी। और ये मोहब्बत का है, ये मोहब्बत जब हो जाता है तो फिर इंसान किसी के लिए कुछ भी कर सकता है। और वो भी अल्लाह के लिए। मोहब्बत तो जान भी देने को आदमी तैयार हो जाता है अगर अल्लाह के लिए मोहब्बत किसी से करता है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खुद फरमाते हैं, अल्लाह से आफ़ियत मांगा करो, ईमान और यकीन के बाद आफ़ियत मांगा करो। आफ़ियत बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे उम्मती नीची निगाह करके चलें, नीची निगाह रखें। और हम आज नीची निगाह वाले को दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आते, दूर दूर तक नज़र आते नहीं। और हम जहाँ तक देखें हम एक दूसरे को देखने वाले नज़र आते हैं। देखने से क्या होता है ना, एक दूसरे को देखने से बहुत बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान। अगर किसी चीज़ को हम देख कर सुबहान अल्लाह नहीं पढ़े, माशाअल्लाह नहीं पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह ना पढ़े, अल्लाहु अकबर ना पढ़े, तो फिर वो चीज़ रह कर भी ज़ाया हो जाता है। सेहत से हो, माल से हो, औलाद से हो, हर चीज़ उचक लिया जाता है जैसा। तो अल्लाह ताला हम सबको पहले तो नीची निगाह रखने की तौफीक अता करे। अगर हम दुनिया की किसी चीज़ को भी देखें, माशाअल्लाह पढ़ें, सुबहान अल्लाह पढ़ें या तो अल्लाह अकबर पढ़ें, कुछ भी अल्लाह का तारीफ़ कर रहा है तो वो नुकसान में नहीं पहुँचेगा। तारीफ़ भी नुकसान तक पहुँचा देता है, खाली तारीफ़ भी। हज़रत उमर बिन शोएब अपने बाप दादा से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत की इस्लाह की इब्तिदा यकीन और दुनिया से रुगबती की वजह से हुई है। इस उम्मत की इस्लाह की इब्तिदा यकीन और दुनिया से बेरुगबती की वजह से हुई है। इसकी बर्बादी इब्तिदा बुखल और लंबी उम्र की वजह से हुई है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता करे। इस उम्मत की इस्लाह इब्तिदा यकीन और दुनिया से बेरुगबती की वजह से हुई है, और इसकी बर्बादी बुखल और लंबी उम्मीदों की वजह से होगी। आज हमारे अंदर में बुखल हर चीज़ में है, और लंबी उम्मीद भी हर किसी के अंदर में है। हम सब के अंदर में है कि हमारा घर हो, हमारा गाड़ी हो, हमारा ज़मीन हो, हमारा कुछ माल हो, हम बड़े आदमी हो दुनिया में, और 10 साल की उम्मीदें हो, और 20 साल की उम्र का भी कर लेते हैं। अल्लाह ताला हम सब को उम्मीद तो करना ठीक है, लेकिन उसके साथ में हिदायत वाली उम्मीद करें कि अल्लाह बाकी का जो ज़िंदगी हो, जो ज़िंदगी पिछले गुजार दी, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। जो बाकी का ज़िंदगी हुई, अल्लाह तेरी रज़ा वाली हो, तेरे ज़िक्र वाली हो, तेरी तारीफ़ वाली हो, तेरी शुक्र वाली हो, तेरी फरमाबरदारी के साथ ही हो, तेरे हुक्म के पाबंदी के साथ में गुजरे, तेरी बंदगी करते हुए गुजरे, इसकी दुआ साथी हो, तो ये फिर बहुत हमारे लिए फ़ायदा मंद है। मरने से पहले एक लम्हा भी पहले हम सच्ची तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला बड़े रहमान है, रहीम है। बस हमें हमेशा तौबे की तौफीक देते रहे। हम दुनिया में कितना जहाँ जहाँ चले गए, हम सोचते हैं कि हम हर कदम में गुनाह होता है, कितने को जगह अल्लाह ताला हमें एक गुनाह करने से रोक दे, हमको वो दिखा दे, हम रुकें तो अल्लाह ताला फिर हमें 10 गुनाह से रोक देंगे, और हमें एक नेकी करने की तौफीक अता कर दे अपने फजल से। फिर हम जब वो नेकी करने लग जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला हमें 10 नेकी की तौफीक अता कर देंगे। अल्लाह बहुत बड़े हैं, बहुत सखी हैं। हम अल्लाह से लेने में भी बुखल करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको दुआ ज़्यादा से ज़्यादा सखी वाला मांगने की तौफीक अता करे, दुआ में बुखल ना करें हम। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर इस तरह तवक्ल करने लगो जैसा कि तवक्ल का हक़ है, तो तुम्हें इस तरह रोज़ी दी जाए जिस तरह परिंदों को रोज़ी दी जाती है। वो सुबह खाली पेट निकलती हैं और शाम भरे पेट वापस आते हैं। अल्लाह ताला जैसे हमसे तवक्ल देखना चाहते हैं सब वो तवक्ल हमें अता फरमा दें, जाने अनजाने में अता कर दें हमारी। कभी अल्लाह ताला कोई बड़ी नेमत देने वाली होती है तो सामने थोड़ा सा हालात डगमगाते हैं। तो अल्लाह ताला, हम तो हालात को देखते हैं, हम नेमत को नहीं देखते, हालात देखकर हम डगमगा जाते हैं।
अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम बंदों को कोई भी नेमत दें तो हालात की समझौते की भी तौफीक अता कर दें। हालात जब डगमगाए तो अपना साया हमारे सर पर अता कर दें, क्योंकि हम हर नेमतों के मोहताज हैं, दुनिया की भी आखिरत के भी। अल्लाह ताला हम तमाम बंदों को अपनी सारी नेमतों से नवाजे जो कभी ना ख़त्म हो, दुनिया में भी आखिरत में भी हमें आफियत दारी अता कर दें। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस गज़वा में शरीक थे जो नहद की तरफ हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वा से वापस हुए तो ये भी आपके साथ वापस हुए। वापसी में ये वाक़या पेश आया कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु दोपहर के वक्त एक ऐसी जंगल में पहुँचे जहाँ कीकर के दरख्त ज़्यादा थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आराम करने के लिए ठहर गए। सहाबा दरख्तों के साये की तलाश में इधर उधर फैल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कीकर के दरख्त के नीचे आराम फरमाने के लिए क़याम किया और दरख्त पर अपनी तलवार लटका दी और हम भी थोड़ी देर के लिए दरख्तों के साये में सो गए। अचानक हमने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आवाज़ दे रहे हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो आपके पास एक देहाती काफिर मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सो रहा था, इसने मेरी तलवार मुझ पर सोंत ली। फिर मेरी आँख खुल गई तो मैंने देखा कि मेरी नंगी तलवार इसके हाथ में है। इसने मुझसे कहा, तुझको मुझसे कौन बचाएगा? मैंने 3 मरतबा कहा, अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस देहाती को कोई सज़ा नहीं दी और उठ कर बैठ गए। अल्लाह ताला हम सभी को इसकी तौफीक अता करे कि हम माफ़ करने वाले बन जाएं। देखें, हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो देहाती तलवार सोंत लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह 3 बार हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अब मुझसे आपको कौन बचाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह। तो उसके हाथ से तलवार छूट गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार हाथ में ली और आवाज़ दी। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन सब सो रहे थे, आए और फिर उस देहाती को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दी। अल्लाह ताला हमें हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की तौफीक अता कर दे। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आजिज़ी थी, जो नरमी थी, अल्लाह ताला वो हमें अता फरमा दे। हमारे अंदर में सख्तगी और हमारे अंदर में बहुत सारा गलती है जो जाने अनजाने में भी हमसे हो जाती है, अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी फ़ज़ल से, अपनी तौफीक से हमें अपनी हिदायत अता फरमा दें। अल्लाह ताला हम सबको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएँ। मेरी दीनी माएँ बहनें, जहाँ भी अल्लाह का ज़िक्र होता है वहाँ जा कर पहुँचें, या अगर वहाँ अपने खंजे में नहीं होता है, आप में से किसी को भी उर्दू पढ़ना आता है तो अपने फ़ज़ाइल अमल की तालीम करें, मसनून दुआ की सुन्नतें बताएं, पढ़ें, सीखें, सिखाएं। दीन सीखने से तब पता चलता है हम कहाँ हैं। खाली इबादत हम जब तक करते रहते हैं, नमाज किताब पढ़ते रहते हैं, सही है, कोई गलत नहीं, लेकिन हमको कुछ भी पता नहीं चलता कि इल्म क्या चीज़ है, उसका दर्जा क्या है, उसका मर्तबा क्या है, वो उसके फ़ज़ाइल क्या है। फ़ज़ाइल सुनने से हमको जज्बा होता है इबादत करने को, हमारा दिल करता है इबादत करने को, दिल में ताज़गी पैदा होता है, जिंदा दिली पैदा होता है। हम सिर्फ नमाज किताब पढ़ लिए, जिक्र कर लिए, कोई गलती नहीं है, सही है। सही गलत का पहचान हदीस के अंदर में है। अल्लाह ताला हम सबको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे। हमें दुनिया में जब तक अल्लाह ताला दुनिया में हमें रखा है, हमारे नस्लों के हक पर को हमें ठंडी छाँवों के साथ, अच्छी अमल के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। हमारी सारी अच्छाई हमारे नस्लों के हर फर्द तक पहुँचा दे। हमारी सारी बुराई, सारी गुनाह गलती हम ही से तौबा कर कर माफ़ करा दे। अल्लाह ताला बहुत रहमान और रहीम है, और हम दूसरे की गलती को देखने के बजाय अपनी गलती को देखने वाले बन जाएं। अल्लाह हमें सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।